पीरियड में स्टूडेंट्स, मुझे पता आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड को अगर आप लर्न कर रहे हो, प्रॉपर से समझ रहे हो, जो टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस में मटेरियल भेज रहे हैं, तो आपके लिए टाइम बड़ा फेवरेबल साबित होगा, क्योंकि इस टाइम में आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, प्रोवाइडेड आप खुद अपनी स्टडी कर रहे हो और टीचर्स के ऑनलाइन आप कांटेक्ट में हो। तो आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो क्लास 7th का है और उसमें सब्जेक्ट साइंस है। मैं खुद एक टीचर हूँ और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ दुलिया से हूँ। तो मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड में डेली एक क्लास के लिए लेसन भेजता हूँ यूट्यूब से। तो चाहे वो कोई भी स्कूल का बच्चा इसको रीड आउट करे, ये मेरी तरफ से बच्चों को गिफ्ट है कि आप घर में रह के सुरक्षित अपना पढ़ लें। अगर वाटर की बात करें, एवरी स्टूडेंट इज वेल अवेयर ऑफ द वाटर, कि वाटर इज ए नेचुरल सोर्स and very essential sustenance of the life. Without water, we cannot live for more days. It is important medium for all life process, and it acts as a universal solvent. Our earth is having three-fourths of the water, but the potable water or water suitable for the drinking purpose is very low. Three-fourths of the water is not usable for the human being activities. For example, it is in the sea, it is a very saline, we cannot use it for drinking purposes. So the water available for the drinking purposes is very low. It is not three-fourths, but whole earth contains three-fourths of the water. Water is present in the form of liquid on the earth as the surface of water. It includes lakes, rivers, seas, oceans, and underground water is present in the atmosphere as a water vapor on the snow-capped mountain in frozen or solid form. So अगर हम पूरा देखें, water is a natural resource. It is essential for the subsistence of the life. It is important medium for the life purposes, and it acts as a universal solvent. Three-fourths of the earth are water in the earth's surface. Water is present in the liquid form on the earth as a surface water that includes lakes, rivers, seas, oceans, and as underground water is present in the water is also present in the atmosphere as water vapors on the snow-capped mountain in the form of the frozen solid form. So it is the ice. अब हमारे पास इन्हीं क्वेश्चंस को लेके हम करेंगे कि व्हाट इज ए वाटर, व्हाट इज ए वाटर, फिर इसके नेचुरल सब्सटेंस कैसे है, कैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, three-fourths of their surface is water, but even though we are having shortage of water, these questions अगर हम आंसर कर पाए तो हम लोग थिंक कर पाएंगे कि वाटर किस किस फॉर्म में है, कौन कौन सा इसका सोर्सेज है। ये छोटी छोटी बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर साइकिल की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की करें, वाटर इन द लिविंग थिंग्स मीन सबसे पहली इंपॉर्टेंट वाटर इन द लिविंग थिंग्स। एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर. Water has the properties of fluidity and solubility, which makes it useful in the process of digestion, blood circulation, and excretion. And it also helps in regulating our body temperature by the process of the sweating. मीन जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं इसमें वाटर बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमारी जितने भी ऑर्गेनिज्म है कंसिस्ट ऑफ वाटर. वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि इट फ्लोज, solubility है इसकी, which makes it useful in digestion, blood circulation, and excretion, etc. Moreover, it also regulates the body temperature by the process of sweating. फिर water in the home, it requires for cooking, cleaning, bathing, and other day-to-day activities. You can write it as uses also. Water for the irrigation. Water is required for the crops
Water for industry, it is used as a raw material in soft clean factories. Water for power, water is used to produce electric power energy. Energy of falling water from the waterfalls and the dams is used to turn the water turbines that drives the generator to produce electricity. 6th point की अगर हम बात करें, water for transport and recreations. People still depend on water transportation to carry heavy and bulky products like machinery, coal, grain, etc. People enjoy water sports like swimming, fishing and sailing. So ये थे हमारे सोर्सेज भी हैं और यूजेस भी हैं. सो नेक्स्ट, वाटर. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि वाटर एज ए सॉल्वेंट. Water has an important property, that is ability to dissolve many substances, thus making it as a universal solvent. ये आपका क्वेश्चन भी है. Why water is a universal solvent? Because water has the ability to dissolve many substances, thus making it as a universal solvent. वाटर साइकिल की बात करें कि वाटर कैसे अपना साइकिल कंप्लीट करता है. वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज evaporates continuously. वाटर क्या करता है? evaporate करता है continuously. These vapors rise up and condense to the form of droplets. These droplets cluster around in a large amount and form clouds, which are then moved to other places by wind. When the water droplets in the cloud come together, they form big drops of the water and falls as a rain, snow or hail. Thus the cycle of water goes on and is called the water cycle. वाटर साइकिल क्या है कि वाटर हमारी जितनी भी सरफेस बॉडीज हैं उनके ऊपर आता है. बाय द सन हीट it goes evaporates and then condenses in the form of the droplets. These droplets form a cluster around a large amount and form clouds, which क्या करता है? Then move to other places by the wind. They form big drops of water and falls as a rain, snow or hail. Thus the cycle goes on and is called water cycle. This is about the water cycle. Water pollution बहुत अच्छा इशू है कि वाटर जब इतना यूजफुल है फिर भी हम इसको पोल्यूट कर रहे हैं. अब इसमें वाटर पोल्यूशन पूछ सकता है. हाउ वाटर कैन बी polluted, which are the causes, how it can be prevented. तो तीनों इश्यूज हम इसी में डिस्कस करेंगे. वाटर पोल्यूशन 7th क्लास के बच्चों के लिए, इसलिए छोटा छोटा हम कर रहे हैं. वाटर इज रिकॉर्डेड एज ए पोल्यूटेड व्हेन द क्वालिटी और द कंपोजिशन चेंजेस. वाटर में जब कोई अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज हो जाती है तो इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. कॉजेज इसके क्या है? डोमेस्टिक सीवेज, कि जो हम घर से वेस्ट पानी होता है उसको हम जब बाहर बहाते हैं तो वो भी अल्टीमेटली जाके क्या करता है? वाटर पोल्यूशन का कॉज करता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट, दिस आल्सो कॉज वेस्ट वाटर पोल्यूशन. फिर एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑयल स्पॉइलेज, ये भी एक पोल्यूशन है. प्रिवेंशन की बात करें, सेप्टिक ट्रीटमेंट फॉर एवरी हाउस, कि हर हाउस का सेप्टिक टैंक को क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए. ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट, जो सीवेज हम लोग करते हैं उसको फ्लो बाहर करने से पहले हम इसको क्या कर ले? सॉल्व कर ले. फिर हमारे पास क्या है? जूडियस एंड मिनिमल यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स, कि हम क्या करें? पानी को साफ रखने के लिए कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करें, कम से कम डिटर्जेंट का यूज करें. अवॉइड थ्रोइंग ऑफ डेड एनिमल्स इनटू द वाटर बॉडीज, कि जो भी हमारी डेड एनिमल्स हैं उनको हम बाहर पानी में ना फेंकें. नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज बी प्लांटेड अलोंग विद द रिवर. सो फिर जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पोर्टेबल वाटर, वो कौन सा वाटर है? वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. ये क्वेश्चन में जाके डेफिनेशन पूछेगा कि फिनिश ब्लैंक में भी हो सकता है, विच वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग
is called, or steps, or what is a potable water, steps to get potable water कैसे हम ले सकते हैं? सेडिमेंटेशन मीन्स जब हमारे पास वाटर मिल जाए तो हम उसको थोड़ी देर पानी को सेटल होने दें और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो बॉटम के ऊपर सेटल हो जाएंगी, या हम उसमें अलम भी डाल सकते हैं, मीन जो फटकरी है वो डाल दे तो वो भी क्या करेगी, इम्प्योरिटीज को नीचे बिठा देगी और पानी ऊपर से हम पी सकते हैं। फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, क्लोरीनेशन से कर सकते हैं, एरिएशन से कर सकते हैं। ये हमारे पास रीजन है वाटर को प्यूरिफाई करने के। कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे फिल इन द ब्लैंक में भी निकलता है और क्वेश्चन में भी बनता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वाटर? वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Again, this composition can be termed in the form of the fill in the blank. Water is composed of 2 atoms of hydrogen. 2 खाली जगह हो जाएगा, 2 atoms of hydrogen को ब्लैंक रख लेगा and 1 को खाली कर सकता है, एटम को खाली कर सकता है, ऑक्सीजन को ब्लैंक कर सकता है, ताकि आप कुछ भी इसमें आपको पूछा जाए, ब्लैंक में भी पूछा जाए या डेफिनेशन में पूछा जाए कि वाटर कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O। फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की क्या है? इट इज ए क्लियर, कोई कलर नहीं होता वाटर का, इट इज ए टेस्टलेस, फिर क्लियर है, ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, इसे अपनी स्मेल भी कोई नहीं होती। इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज रिटन रॉन्गली, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस and freezes at 0 degree Celsius. The density of the water, if तो हमने composition of water में किया कि water composed of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Its formula is H2A. Physical properties of water की बात करें तो it is a clear, मीन्स इसका कोई बिल्कुल साफ होता है, ओपेक नहीं होता, इससे आर पार आप दोनों देख सकते हो। टेस्टलेस है, इसकी कोई स्वाद नहीं होता, कलरलेस, रंग भी इसका अपना कोई नहीं है, ऑर्डरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं होती। इट बॉइल्स, इसको उबाल सकते हैं हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। डायनेस्टी ऑफ वाटर इज 1 डिग्री सीसी एट 4 डिग्री, इट इज मैक्सिमम डायनेस्टी ऑफ वाटर इज 1 डिग्री। ये फिल इन द ब्लैंक में अक्सर पूछा जाता है। It can dissolve almost any substance. Salinity की बात करें C में तो dissolve salts in water causes salinity and it cannot be used for drinking or other purposes. This is the problem of the human beings कि although water is contained on the earth is 3/4 but it is not used or it cannot be used for drinking or other human being purposes. The process of removing dissolved salt from the saline water is called desalination. Desalination भी important चीज है, ये क्वेश्चंस में भी आगे जाके आपको पूछा जाएगा। अब असेसमेंट की बात करें तो क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ सकता है, नेम 3 सोर्सेज ऑफ वाटर। 3 सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? रेन वाटर, ओशन वाटर, ग्राउंड वाटर, ये आपके पास हो सकते हैं सोर्सेज। What are the 3 different states of the water? 3 different states of water are ice, solid form में है, water and ये liquid stage में है, और water vapors gas stage में। Right 2 causes of water pollution, industrial based इसमें आ जाएगा और domestic sewage आप agriculture based में इसमें डाल सकते हैं। fill in the blanks अगर इसमें बात करें तो आपको पास जैसे मैंने पहले बताया था कि डिसैलिनेशन, देखो उसकी डेफिनेशन है, रिमूविंग द डिसॉल्व साल्ट्स फ्रॉम द सलाइन वाटर इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल को यूज कर सकता है फिल इन द ब्लैंक में भी, क्वेश्चन में भी। क्लोरीनेशन इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू मेक वाटर ड्रिंकेबल, so it basically kills bacteria. Water has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. ये आपके पास fill in the blank में भी आ सकता है। Water is a universal solvent, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये universal solvent की डेफिनेशन। फिर प्योर वाटर टेस्टलेस है, उसके आपको बताया था, कलरलेस है, टेस्टलेस है, क्लियर है,
और ऑर्डरलेस है। कोई भी पूछे ट्रू फॉल्स आप बता सकते हो। यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्या करता है, पोल्यूट वाटर, ट्रू है। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1, ट्रू है। दी density of water is maximum at 4 degree Celsius. It is not 40, it is 4 degree Celsius. 4 degree Celsius. Thank you students. I hope आपको ये टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट पूरा से क्लियर हो गया। Let us recapitulate our whole lesson. अगर फर्स्ट की बात करें तो वाटर क्या है, नेचुरल सोर्स से शुरू करते हैं हम लोग, और इट इज वेरी एसेंशियल as subsistence of the human life. Without water we cannot live. It is the important medium for all life process और it acts as universal. अर्थ के ऊपर 3/4 वाटर है, but make sure it is not drinking water. It whole cannot be used for the drinking, even though water is 3/4 on the earth, but still we have shortage of the water for potable activities. फिर importance of water, इसमें आप इसके यूजेस बता सकते हो कि वाटर यूज्ड इन लिविंग थिंग्स, वाटर इज यूज्ड एट होम, वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन, वाटर इज यूज्ड फॉर पावर प्रोडक्शन, वाटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर इज यूज्ड फॉर रिक्रिएशन। ये हमारे पास मेन इसके पॉइंट्स आ सकते हैं, जिनको हम फिर सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें तो हमारे पास सोर्सेज में क्या आ जाएगा, रिवर, लेक्स, ओशंस, फिर रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, फिर हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। ल्यूकर फॉर्म में वाटर कहाँ से मिलता है, ये रिवर से, लेक से, सी से, गैस फॉर्म में, एटमॉस्फेयर से, सॉलिड फॉर्म में, आइस कहाँ पे, माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स में, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। आइस वाटर में बनती है और वाटर वेपर्स में, ये सॉलिड, ल्यूकर, गैस, ये चेंज होता रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ वाटर, जैसे पहले बताया। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। सैलिनिटी में जो डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड सैलिनिटी। थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव रिकैप्चुलेट द होल लेसन, और कल हम इसके ऊपर डिटेल जो बुक में टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर बात करेंगे और इससे ये लेसन